Hello my dear students. Our last videos we had studied about the interrogative sentences, affirmative sentences of the simple present tense. Now we have to come to know, we had also studied about the negative sentences, and I hope you have learnt about all the rules of those sentences. I am going to tell you negative question, the fourth kind of sentence of the simple present tense. The rule that I have already written, it is do or does plus subject plus not plus V1 plus object and other part of the sentence, then question mark we have to put. You know, we are telling that it is negative question. As we know, हमने interrogative में पहले helping verb को या auxiliaries को use किया था, that is primary auxiliaries, उसके बाद में subject लिया था. क्योंकि ये negative question है तो हम पहले auxiliary helping verb use करेंगे, then subject प्लस नेगेटिव होने के कारण हम नॉट का भी यूज करेंगे एंड वर्ब का बेस फॉर्म मीन्स एज वी नो द रूल इज दैट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. Here if singular subject is there, we will use singular verb because we are using does, and if plural subject we will use singular verb as it is, no change, vice versa, is it? So I will tell you how to use with singular subject and plural subject. So first of all we will do does plus he or she, it, or any singular that I am telling you orally, any singular, I can write that any singular subject plus not plus V1 form of the verb and object. Here singular verb means s or es omitted, omit हो जाएंगे. Is that clear? यहाँ से verb में s और es omit हो जाएंगे. For example, we will say does she not listening you carefully? This became negative question and question mark. Is that clear? Now, does she not, sorry, not listening. Does she not listen? First form of the word. Does she not listen you carefully? Is that clear? Now, here does plus she means subject plus not plus V1 form of the verb means singular verb and plus other object and other part of the sentence. We have put here question mark. So I think you have understood this. Now I will tell you इसका यदि हम affirmative बनाएंगे तो she listens you carefully. What will be the affirmative? She listens you carefully. This is affirmative. ये हम इसीलिए बनाकर बता रहे हैं आपको कि आपको जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आएगा affirmative to negative, negative to affirmative or to assertive or to interrogative, we will need these words या उसमें हम opposite का भी use करते हैं but meaning change नहीं होना चाहिए. चाहे हम affirmative to negative बनाएं या affirmative to interrogative बनाएं या नेगेटिव टू अफर्मेटिव और नेगेटिव टू इंटरोगेटिव बना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. इन आगे वीडियोस में हम लोग लर्न करेंगे अबाउट द affirmative transformation of transfer of the sentence that we will learn. Now here if we are using do, so what will happen? Do plus I or we or I or plural of the plural subject or we or she, I, you, we, you, they or any plural.
प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस object and other part of the sentence and question mark. Question mark is essential because we are asking the question here also, but with the negation. Now, we will write the sentence. If you have to think about the rule, that we will write a sentence or an example that do they not follow their teacher. Is that clear? And question mark. Do they not follow their teacher? ये हुआ आपका नेगेटिव क्वेश्चन. नेगेटिव क्वेश्चन. Is it? अब हम इसे अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे? So they follow their teacher. Is that clear? Full stop. Here also full stop. ये हो गया आपका अफर्मेटिव. या अफर्मेटिव से हमने नेगेटिव क्वेश्चन बना दिया है. मजे की बात यह है कि एक ही सेंटेंस को आप सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इंटरोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन एंड अफर्मेटिव आल्सो. So now we will come to the other part of the sentence, that is past tense. पास्ट टेंस में हम अब सिंपल पास्ट टेंस का लेंगे. जैसा कि आप जानते हैं हर टेंस के 4 काइंड्स होते हैं. हमने ये सिंपल के साथ में हम सिंपल पास्ट टेंस का ही रूल ले लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में हम सिंपल पास्ट टेंस का रूल ले लेते हैं. तो आपको तीनों में डिफरेंशिएट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, तीनों के डिफरेंशिएट करने में इजी रहेगा और रूल्स लर्न करने में भी इजी रहेंगे आपके. हियर आई टोल्ड यू सिंपल पास्ट टेंस मीन्स पास्ट टेंस में जो काम पास्ट में हो गया है या हो गया उसे बताया जाता है. काम हुआ था, दैट इज उसमें बताया जाता है कि ये पास्ट टेंस में है. तब हम यहाँ पर, सॉरी ये निकल गया है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस object. This is for affirmative sentence. Is that clear? ये अफर्मेटिव के लिए सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या लिया था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. बट यहाँ पर क्या नोटिस करने का था? इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इफ द प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. But here we are taking subject plus V2 plus object. जब हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए, डू डज का यूज किया. डू डज का जब यूज किया था तो रूल्स थोड़े से चेंज हो गए थे. जब हम डज का यूज कर रहे थे तो V1 में बेस फॉर्म में एस और ईएस या प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब जो है वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है. अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज आएगा जब हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव्स बनाएंगे तब. और फिलहाल हम देखते हैं कि इसके रूल्स कैसे होंगे. तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. अब किसी भी वर्ब का सपोज हमने ले लिया गिव, बेस फॉर्म इज गिव, V1 gave and given. एक्चुअली गिविंग भी लिया जाता है फोर्थ फॉर्म, यानी V1 V2 V3 और V4 भी लिया जाता है गिविंग. इज दैट क्लियर? बट अभी हम 3 फॉर्म्स ही देखते हैं. यदि हमने ये 3 फॉर्म्स देखे हैं तो इसमें देखिए वर्ब में सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाना है.
सेकेंड फॉर्म जब हम यूज करेंगे तब हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो, वेदर सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर और प्लूरल, we have to use V2. Simply we have to use V2 form of the verb. Isn't? So I'll tell you whether subject is he, she, it, any singular or any plural, or I, we, you, they, any singular or any plural, many times I'm repeating, we have to use V2 form plus ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, फुल स्टॉप। अब शी, मी अ पेंसिल। अब देखिए हमने यहाँ गिव लिया है, सपोज गिव का हम रूल पर जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 मीन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो गिव का हो जाएगा गेव, शी गेव मी अ पेंसिल, इज दैट क्लियर? आई to my sister, here I have taken talk, talk के लिए हम second form of the verb, you all know all the forms, three forms of the verb talked, I talk to my sister, is that clear? very simple it is। अभी देखिए हमें यदि इसका इंटरोगेटिव बनाना, सपोज वी हैव टू मेक इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के लिए रूल्स क्या हो जाएंगे, हमने प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज किया था, चूंकि ये पास्ट टेंस है यहाँ पर डिड का यूज होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी नोटिस्ड दैट V2 changes into V1 form, is that because two past tense are not used together, only exception is, एक अपवाद है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो पास्ट टेंस यानी हैड और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, बाकी कभी भी जब भी आप डिड का यूज कर रहे हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कभी भी यूज नहीं होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, हम इसी सेंटेंस को बनाते हैं यहाँ पर, डिड शी गेव का गिव हो जाएगा, गिव मी अ पेंसिल क्वेश्चन मार्क। देखिए इजीली इट इज कन्वर्टेड, डिड आई टॉक टू माई सिस्टर, डिड, ये सेकेंड वाला सेंटेंस हम यहां बना लेते हैं, डिड आई टॉक टू माई सिस्टर क्वेश्चन मार्क, ये आपका हुआ इंटरोगेटिव। हम एक बार रिपीट करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, whether it is singular subject or plural, we have to use V2 form of the verb। यहाँ देखिए in simple present tense we had used subject plus V1 plus object, means first form or base form of the verb, here we had rule singular subject plural verb, plural subject singular verb, but while making interrogative or negative we were using does also, that time while using does we were using base form of the verb, means s और es जो है वो omit हो जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के साथ, वेदर इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वी हैव टू यूज ओनली V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ यूज करने के बाद में हमने एक सेंटेंस, शी डॉट डैश मी अ पेंसिल, गिव लिया है, शी गेव मी अ पेंसिल, गिव का गेव हो जाएगा, आई डैश टू माई सिस्टर, here the verb had been given talk, talk का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ed यूज हो जाता है talk,
आई टॉक टू माई सिस्टर। अब यहाँ देखिए, इसी को इंटरोगेटिव बनाने में अब आपको थोड़ा इजी होता जाएगा सेंटेंस। हम डिड का यूज करते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। हमने सिमिलर सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया है इंटरोगेटिव में। शी गेव मी अ पेंसिल को हमने लिया है, डिड का यूज करना है, तो डिड शी गेव का गिव हो जाएगा, मीन्स आप वापस बेस फॉर्म में जाएंगे एंड डिड शी गिव मी अ पेंसिल इज दैट एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आई टॉक टू माई सिस्टर, टॉक का हमने यहाँ पर बेस फॉर्म में जाना है, V1 फॉर्म में डिड का यूज करना है एंड क्वेश्चन मार्क लगाना है। सो डिड आई टॉक टू माई sister and put a question mark.